اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہاج العربیہ الجزء الثانی کا درس اول ہم تقریباً 3 دنوں میں مکمل ہم نے کیا کہ پورے درس کو پڑھا اور اس امید کے ساتھ کہ 3 دنوں میں تو یاد ہو ہی گیا ہوگا. صحیح. آج آتے ہیں الدرس الثانی، دوسرا درس ہے جمع مکسر کا. جمع مکسر اس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے، پھر اشارہ کر دیتا ہوں کہ عربی میں جمع 2 طرح کی ہوتی ہے. عربی میں جمع ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جمع جسے کہا جاتا ہے جمع سالم، اور ایک ہے جس کو کہتے ہیں جمع مکسر. جمع سالم اور جمع مکسر، ٹھیک ہے. کیا ہے وہ دیکھ لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. کہ جو ہم کہتے ہیں جمع مکسر اور سالم کا فرق سمجھیے. ہم نے کہا حمال، حمال مانے کیا ہوتا ہے؟ حمال مانے کلی جو ہوتا ہے نا اس پہ اسٹیشنوں پہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں حمال. چونکہ وہ سامان کو کیا کرتا ہے؟ اٹھاتا ہے، اسی لیے اس کو بولتے ہیں حمال. حمال مانے کلی. اس کی جب جمع بنائیں گے تو اس کے آخر میں پلس کریں گے واو اور نون کو، اور کیا بن جائے گی؟ حمالون. اور یہ جمع ہو گئی. اچھا مجھے یہ بتائیے، جو جمع ہم نے بنائی تو اس کے سنگولر میں کوئی چینج واقع ہوا؟ نہیں سیم ہے کہ نہیں ہے؟ ویسے کہ ویسا ہے. اسی لیے اس کو بولتے ہیں جمع سالم. جمع اور مذکر کی جمع ہے نا، تو جمع مذکر سالم کر دیتے ہیں. اب دیکھیے، یہ دیکھیے مؤنث کی مثال لے لیتے ہیں. مسلمتن، ایک مسلمان عورت. اس کی جمع بنانی ہوگی تو اس کے آخر میں بڑھاتے ہیں الف اور تے. کیا ہو جائے گی؟ مسلماتن. یہ جمع ہو گئی. اس کے جو میم سین لام میم، میم سین لام میم، کچھ چینج ہوا؟ سب کا سب وہی ہے. یہ بولتے تو مؤنث والی ہے، تو اس کو بولتے ہیں جمع مؤنث سالم. سالم اس لیے بولتے ہیں کہ مفرد اس کا صحیح و سالم ہے، مفرد میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے، کوئی چینج نہیں آیا ہے. یہ مذکر کیے تو جمع مذکر سالم، اور یہ مؤنث کیے تو جمع مؤنث سالم. اب دیکھیے مکسر کس کو کہیں گے، اگر یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ مکسر کہتے ہیں کہ جس کی مفرد سالم نہ رہے. الان انکسر ظہری، انکسر مانے کیا ہوتا ہے؟ نہیں جانتے؟ الان انکسر ظہری جناب عباس کے مصاحف میں نہیں پڑھتے ہیں؟ سنا ہے کہ نہیں؟ ہاں، کیا مطلب ہے اس کا؟ انکسر یعنی ٹوٹ گئی. الان انکسر ظہری کہ ابھی میری کمر ٹوٹ گئی. صحیح ہے. تو انکسر کے معنی ہوتے ہیں ٹوٹنے کے. تو مکسر جو ٹوٹ جائے، جس کی مفرد سالم نہ رہے. جیسے رجل، کیا ہے؟ رجل. اس کی جمع معلوم کیا ہو جائے گی؟ رجال. مجھے بتائیے، رے جیم لام تھا، یہاں رے جیم کے بعد کیا آ گیا؟ الف. تو سالم رہی کہ ٹوٹ گئی؟ ٹوٹ گئی نا، تو اسی لیے اس کو بولتے ہیں جمع مکسر. یہ کیا ہے؟ یہ جمع مکسر ہے. یہ
मुकस्सर, यहां आएगा सीन। जमा मुकस्सर या जमा तकसीर, क्या बोलेंगे? जमा तकसीर, मुकस्सर या तकसीर। इसी तरह से देखिए किताब की जमा, किताब की जमा क्या हो जाएगी? कुतुब, कुतुब। यहां अलिफ था, ये अलिफ क्या हो गया? गायब। ये भी जमा तकसीर है। अब यहां एक पॉइंट की बात है, बहुत बारीक। वो पॉइंट की बात क्या है उसको गौर कर लें, समझ लें कि जब जमा तकसीर होती है तो जमा तकसीर में दो चीजें देखी जाती हैं, आकिल और गैर आकिल। जैसे कलम की अकलाम, क्या आएगी? अकलाम। जमा तकसीर है कि नहीं है? कि सालिम है? तकसीर है, तकसीर है, मुकस्सर है ये। और देखिए वलद की औलाद, वलद माने क्या होता है? लड़का, लड़का। औलाद इसकी आएगी, लड़के, मुकस्सर है। फर्क देखिए क्या है इसमें, हम होता है एक आकिल और एक गैर आकिल। आकिल और गैर आकिल। क्या है आकिल और गैर आकिल? उसको गौर करिए। रजुल में अक्ल है कि नहीं है? है। किताब में अक्ल है? कलम में है? वलद में है? तो जो आकिल होता है उसके साथ जमा है तो जमा वाला मामला करते हैं, कोई मुश्किल नहीं। जैसे रिजाल है ना, कहेंगे हाउलाए रिजालुन। हाजा की जमा क्या होती है? हाउलाए। ये सब, हाउलाए यानी ये सब। मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए क्या लाते हैं? हाउलाए। सही है। हाजा की जमा तो हम यहां क्या कहेंगे? हाउलाए रिजालुन, सब आदमी हैं। लेकिन कुतुब के लिए नहीं कहेंगे, कलम के लिए नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये गैरे आकिल है, इसके लिए मुफरद मुअन्नस लाएंगे। मसलन यहां हमने हाउलाए कहा, यहां कहेंगे हादिही कुतुबुन। क्या कहेंगे? हादिही कुतुबुन। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये आकिल नहीं है। नहीं है। समझ में आया? अब इसी तरह से एक पॉइंट और बता देता हूं, उसको याद रखिएगा कि जब मुब्तदा खबर बनाएंगे, इसमें इशारा का तो समझ में आया कि आकिल रहेगा तो जमा के साथ, मुज़क्कर के साथ क्या लाएंगे? जमा उसकी भी लेके आएंगे। सही है। लेकिन इसके साथ हम जमा नहीं लाएंगे बल्कि मुफरद मुअन्नस लाएंगे। अब चूंकि इसके साथ मुअन्नस का मामला किया जाता है तो जब हम खबर बनाते हैं खबर भी मुअन्नस लाएंगे। जैसे हम कहेंगे अर्रिजालु हाजिरूना, मर्द हाजिर हैं, लेकिन अल कुतुबो मौजूदतुन। क्या कहेंगे? किताबें मौजूद हैं। अब ये मौजूदतुन जमा है कि जमा है कि मुफरद है? मुफरद है। जमा है। ना मुफरद है, मुफरद है और मुअन्नस है। हाँ, मुफरद मुअन्नस लाएंगे, जमा नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि ये गैर आकिल है। अभी किताब में हम लोग तदबीक करेंगे तो मजीद वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है कि आकिल और गैर आकिल का मामला कैसे होता है। आइए जरा किताब की तरफ रुजू करते हैं। तो मतलब अगर ये समझ गए तो पूरा दर्स समझ में आ गया, कुछ नहीं बाकी दर्स में तो अल्फाज मानी। अब गौर करिए, जहरुन, जहर माने क्या होता है? फूल। फूल। इसकी जमा तकसीर क्या बनती है? अज़हार। अज़हार। अब मुझे बताइए ज़हरुन अज़हार में फर्क है कि नहीं है? जे हे रे, अलिफ जे हे और अलिफ,
अलिफ तो बाकी रही मुफरद की टूट गई, टूट गई, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? मुकस्सर। वलद की क्या बनी? औलाद, औलाद औलाद बनी। अब यहां देखिए, इस पे गौर करिए जो मैं बता रहा हूं। मुफरद में क्या था? अज़्ज़हरु जमीलुन। मुफरद जब था तो अज़्ज़हरु जमीलुन, फूल खूबसूरत है। अज़्ज़हरु मुफरद है, जमीलुन खबर है, मुब्तदा है। अज़्ज़हरु देखिए मुज़क्कर है कि नहीं है? और जमीलुन भी मुज़क्कर, उसकी खबर आई है। लेकिन जब इसकी जमा बना दी तो क्या कहा? हादिहिल अज़्ज़हारु जमीलतुन। आई समझ में? ये सब फूल खूबसूरत हैं। अज़हार जमा है, लेकिन हम क्या लाए? हाज़िही का इस्तेमाल किया। जमीलतुन मुफरद है और मुअन्नस है, इसकी खबर इसको बना दिया हमने। गौर किया आप लोगों ने? जी। अब इसके बरअक्स एक मिसाल दे देते हैं हम, जो आकिल की हो। आगे आइए, यहीं पे आइए, ये देखिए, अल वलदु सगीरुन। देखिए, लड़का छोटा है। हाउलाइल औलादु सिगारुन। सगीरतुन नहीं कहा, क्या कह दिया? सिगारुन। सही, यानी ये भी जमा लाए और ये भी जमा लाए। हाजा की जमा हाउलाए। बाकी के साथ देखिए, हादिही, तिलका, हादिही का इस्तेमाल किया कि नहीं किया? और ये क्यों फर्क क्यों आ रहा है? आकिल और गैर आकिल का। सही है कि औलाद, रिजाल, अस्दिका, ये सब क्या हैं? आकिल हैं। आकिल है या नहीं है? लेकिन यहाँ पे देखिए, हदाइक, दुरूस, कुतुब, बुयूत, अशिया, अलआब, अस्मार, अनाब, अजहार, ये सब जमा है, लेकिन आकिल नहीं है। इसीलिए इनके साथ क्या ला रहे हैं? इसमें इशारा देखिए, मुअन्नस का ला रहे हैं। इसकी खबर भी क्या ला रहे हैं? मुअन्नस ला रहे हैं। कि जब जमा तकसीर, सही है, गैर आकिल की हो तो उसके साथ मामला किसका करते हैं? मुअन्नस का मामला करते हैं मौलाना। किसका मामला होता है? मुअन्नस का। किसके साथ मुअन्नस का मामला करते हैं? कौन से गैर आकिल? जब जमा मुकस्सर हो गैर आकिल की, खाली गैर आकिल का नहीं। सही है। अज़्ज़हरु जमीलुन, चूंकि गैर आकिल, तो देखिए, अल्लाइबु मुफीदुन कहना, तो लाइब में अक्ल है, लेकिन क्या आ रहा है? वो मुज़क्कर की मुज़क्कर आ रही कि नहीं आ रही? तो खाली गैर आकिल बोलने से काम नहीं चलेगा, हमें क्या बोलना होगा? जमा मुकस्सर गैर आकिल की हो। आइए चलिए देखिए, तो पहला वाला समझ में आया सबके? कि और थोड़ा आसान करके बताऊं? नहीं, तो ये तो आपने कहा। तहसीन किसने बोला ये? आगा नहीं आया समझ में। आ गया। हाँ, वही मैंने कहा। अच्छा, रूही सदफ को आया, मरियम को अभी नहीं आया, फिर बताता हूँ। चलिए देखिए, कोई बात नहीं। ये बताइए, बेसिक जो समझ में आया कि नहीं आया? जमा सालिम और जमा मुकस्सर, वो समझ में आया कि नहीं आया? मरियम? वो तो आया। वो आया के साथ। फातिमा ज़हरा। देखिए, अल-ऐनबु की जमा क्या बनेगी? अल-आनाब। ऐनब माने क्या होता है? अंगूर। अंगूर। आनाब, बहुत सारे अंगूर। सही है। आनाबु, ठीक है। अल-ऐनबु, अल-आनाबु। अस-समरु, फल। अल-अस्मारो, अस्मारो यानी बहुत सारे फल। अल-लअबु माने खेल। अल-अलआबु बहुत सारे खेल। अश-शय्यु माने चीज। सही है। अल-अशियाउ
बहुत सारी चीज। अलबैतो माने घर, अलबुयूतो बहुत सारे घर, अलकिताबो किताब, अलकुतुबो बहुत सारी किताबें, अद्दरसो दर्स, अद्दुरूसो बहुत सारे दुरूस, अल-हदीक़तो बाग, बाग, अल-हदाइक़ो बहुत सारे बाग, अल-वलदो लड़का, अल-औलादो बहुत सारे लड़के, अर्रजुलो आदमी, अर्रिजालो बहुत सारे आदमी, अस्सदीक़ो दोस्त, अल-अस्दिक़ाओ बहुत सारे दोस्त। अब देखिए यहाँ पे अल-इनबो असल जो है वो कैसे है, अलिफ लाम हटा दीजिए, अलिफ लाम तो ये तो शुरू में आ रहा है ना, इसलिए अलिफ लाम ला रहे हैं। असल वर्ड क्या है, ऐन नून बे। अब यहाँ पे उसमें चेंजिंग क्या क्या आई, एक शुरू में अलिफ बढ़ा, ये अलिफ आया कि नहीं आया, अलिफ लाम को हटा दीजिए, अलिफ लाम तो इसका आ गया, ये अलिफ बढ़ा, फिर नून के बाद एक अलिफ बढ़ा, कई अलिफ ज्यादा हो गए, दो अलिफ बीच में ज्यादा हो गए, तो इसलिए क्या हो गया, जमा तकसीर, जमा मुकस्सर। ये तो क्लियर है ना, कि ये भी इसमें भी डाउट है कुछ? जी आगा, इतना तो समझ नहीं आ रहा। हाँ, समर में देखिए अलिफ लाम हटा दीजिए, ये तो अलिफ लाम तो मारिफा के लिए है, से मीम रे, यहां देखिए क्या हुआ, अलिफ से मीम अलिफ रे, बीच में कई अलिफ घुस गए, दो, एक शुरू में और एक मीम के बाद, तो इसलिए मुकस्सर हो गया। अल-लाइबो में अलिफ लाम शुरू वाला छोड़ दीजिए, फिर क्या बचा, लाम ऐन बे, यहां भी क्या पढ़ा, दो अलिफ पड़ गया, अल-आबो। अश-शय्यो में देखिए अलिफ लाम हटाइए, शीन दो शीन है और हमजा पे पेश है, अल-अशियाओ, अलिफ लाम हटाइए, अलिफ पढ़ा और ये के बाद एक अलिफ पड़ गया। अल-बैतो में अल-बुयूतो क्या पड़ गया मौलाना, वाव पढ़ा, बीच में वाव पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्यों जी, जौहर को नहीं दिखा अभी लग रहा है। हाँ, बैत का क्या हो गया, बुयूत, वाव बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, जमा मुकस्सर हो गया। अल किताबो, काफ ते अलिफ पे, अल कुतुब, अलिफ बीच से क्या हो गया, हस्फ हो गया, कम हो गई एक चीज। अद्दरसो अद्दुरूसो क्या बढ़ गया, यहाँ वाव बढ़ गया। आई समझ में? तो ये सारे के सारे क्या है, जमा तकसीर है, जमा तकसीर। अगर आकिल, आकिल समझ में आता है ना, जिसके अंदर अक्ल पाई जाती है, जैसे औलाद, लड़का है, लड़के क्या है, अपने मर्जी से उठते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सही। अर्रिजाल, आदमी भी वही है। अल-अस्दिक़ा, दोस्तों में भी अक्ल होती है कि बेअक्ले होते हैं, अक्ल होती है नहीं। अब हदाइक में देखिए, पार्क में कोई अक्ल होती है, नहीं है? अद-दुरूस कोई अक्ल नहीं है, तो इसको बोलते हैं आकिल और गैर आकिल। यहाँ देखिए, मैं आपको जरा एक और जरा हम पैमाना बता दें ताकि मजीद मुश्किल आसान रहे, भले आज दर्स मुकम्मल तो होगा नहीं है। ये जो इसमें इशारा है हमारे पास, वो इस तरह से देखिए, मुज़क्कर का लिख रहा हूं पहले, हाजा, हाजाने, क्या आएगा, हाजाने, हाउलाए, हाज़िही, हाताने, तस्निया के लिए हाउलाए, ज़ालिका, ज़ानिका,
ٹھیک ہے. اولائکا قرآن میں بہت آیا نا. اولائکا. تلکا. تلکا. تانکا کیا لاتے ہیں تسنیہ کے لیے؟ تانکا. یہاں بھی کیا آ جائے گا؟ اولائکا. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. صحیح. اولئک. تو یہاں پہ دیکھیے یہ جو تل کا مفرد کے لیے ہے، تانے کا تسنیہ. تسنیہ عربی کی خصوصیت ہے، یہ کسی لینگویج میں نہیں پایا جاتا تسنیہ. نہ انگلش میں ہے، نہ اردو میں ہے، نہ فارسی میں ہے. صحیح ہے کہ ہم کوئی ایسا لیٹر آتا ہو جو دو لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہو، لیکن عربی میں دو کے لیے ہوتا ہے. مفرد یہ سنگولر ہے، تسنیہ دو کے لیے، جمع تین اور تین سے زیادہ کے لیے. صحیح. کس کا استعمال کرتے ہیں؟ جمع کا استعمال کرتے ہیں. اب اسی طرح سے تینوں، یہ تینوں کس کے ہیں؟ یہ سب مفرد کے. یہ مذکر، یہ مؤنث، یہ مذکر، یہ مؤنث. یہ تسنیہ میں مذکر مؤنث، مذکر مؤنث. یہ دونوں قریب کے، یہ دونوں دور کے. یہ جمع کے لیے ہے. صحیح ہے. یہ قریب کے جمع کے لیے، یہ دور کے جمع کے لیے. اب دیکھیں ہم نے کیا کہا کہ اگر جو ورڈ ہم جس کی جمع ہم نے بنائی ہے اگر وہ عاقل کی جمع ہے تو اس میں اشارہ بھی یا تو یہ والا یا یہ والا آئے گا. اور اگر عاقل کی نہیں ہے، غیر عاقل کی جمع ہے، تو قریب میں یہ والا، دور میں یہ والا. کچھ کلیئر ہوا؟ جی ہاں. آیا؟ ہاں. اب پھر درس کو دیکھنا تو اب اس طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. یعنی ویسے تو ترجمہ کرنے کے لیے تو کچھ نہیں ہے اس میں، سیدھا ہاں بھی ریس مت کریے گا. ہاں بھی ریس مت کریے گا. نہیں ریس نہیں کر رہا ہوں میں. تو اس کو کیا ہے کہ یہ کام آپ کو کب آئے گا کہ جب آپ کو خود سے اردو سے عربی بنانی ہوگی تب یہ ہیلپ کرے گا. اگر یہ آپ کو یاد رہے گا تو پھر اس کے اکارڈنگ آپ جملے بنائیں گے. صحیح. ورنہ تو کیا ہوگا؟ غلطی ہوگی ہی ہوگی، ہر حال میں ہوگی. تو اس کا فائدہ آپ کو وہاں مل رہا ہے کہ جب اردو سے عربی بنانی ہے. زانے کا مطلب کیا ہے؟ زانے کا وہ دونوں، تانے کا وہ دونوں. یہ میل کے لیے اور فیمیل کے لیے. جیسے ہم اس طرح سے کہیں گے، ہم کہیں گے مثلا ذالک رجل، وہ آدمی ہے. زانے کا رجلان، وہ دو آدمی ہیں. صحیح ہے. اور اولائکا رجال، وہ سب آدمی ہیں. اگر ذالے کا رجلان، ذالکا رجلانے نہیں کہیں گے، ذالکا کے ساتھ ایک کا لائیں گے. چونکہ ذالکا سنگولر ہے تو اس کے لیے ایک کا. ذالکا دو کے لیے آتا ہے تو وہ رجلانے، دو آدمی. اور جمع میں اولائکا رجال یا ہؤلاء رجال، ہؤلاء اصدقاء، ہؤلاء اور کیا ہے نا، تین ہے نا، صدیق، اولاد. ہاں، ہؤلاء اولاد، یہ سب اولاد ہیں، یہ سب لڑکے ہیں. اولئک اولاد. تانکا یہ ہازانے، دو آدمی کے لیے. ہازانے افنان و علی عباس. ہاتانے روحی صدف و فیروزہ، یعنی یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک روحی صدف اور ایک فیروزہ. تو اس طرح سے ہاتانے کا استعمال کریں گے قریب کے لیے مؤنث میں، ہازانے کا مذکر میں. زانے کا اور تانے کا. درس ہمارا جو کہہ رہا ہے کہ عاقل کے ساتھ جمع والا، غیر عاقل کے ساتھ مؤنث والا مفرد کا استعمال ہوگا. اگر یہ آپ نے
देख समझ लिया है तो फिर एक मरतबा दर्स पे गौर करिए। आइए जी इसको कल दर्स को हम मुकम्मल करेंगे और समझिएगा, कल और थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखिए दर्स को यहां पे अज़हरों का अल-अज़हार कहा तो क्या लाए, हाज़िही। अल-आनाब के साथ क्या लाए, हाज़िही। अस्मार के साथ हाज़िही, या फिर क्या लाए, तिलका। हाज़िही भी मुफरद के लिए है, तिलका भी मुफरद मुअन्नस के लिए है। लेकिन जब हमने औलाद कहा तो क्या कर दिया, हाउलाए। अब रिजाल के साथ उलाइका, अल-अस्दिका के साथ हाउलाए। कुछ क्लियर हुआ कंसेप्ट? जी हाँ, तो इंशाअल्लाह इसको मुकम्मल हम लोग कल करेंगे। सही, यहीं पे रुकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल हाज़िही। हाँ बोलिए। हाँ हाज़िही अज़हारो है, हाँ, तो इसका मतलब ये फूल खूबसूरत है। नहीं नहीं, ये सब फूल ये खूबसूरत है। सब फूल हाँ, तर्जुमा जो करेंगे ना, हादिहिल अज़हारु जमीलतुन, ये सब फूल खूबसूरत हैं। हाँ तो बोलिए। हाज़ल अज़हारो नहीं आ सकता था यहाँ? नहीं, वही यानी ग्रामेटिकली गलत है, समझे नहीं अच्छा, है? अगर ये इसकी जमा मुकस्सर की वजह से हाज़िही आया है। हाँ, जमा मुकस्सर की वजह से खाली मत कहिए, गैर आकिल की जमा मुकस्सर होने की वजह से। अच्छा जी हाँ, तब इसको हाज़िही लाएंगे, मुअन्नस का ही उसके साथ बर्ताव करते हैं, है मुअन्नस नहीं वो। सही, चूंकि अज़हरो मुअन्नस तो नहीं है, अल-इराबु मुअन्नस है कि मुज़क्कर है, अस्समरो मुज़क्कर है, लेकिन चूंकि इसकी जब जमा तकसीर ला रहे हैं तो उसके साथ बर्ताव किसका किया जाएगा, मुअन्नस का। ये ग्रामर की बात है, चूंकि इसमें मिक्स हमारा है ना, ये पूरी दर्स हमारा मिक्स है। तो क्या है, अगर इसको समझ लेंगी तो आपके लिए बहुत आसानियां पैदा हो जाएंगी, बहुत आसानियां, चूंकि ये ऐसी चीजें हैं कि यहाँ गलती बहुत करता है इंसान, अरब में रहने वाला भूल करता है इसकी। ठीक है, इंशाअल्लाह। चलिए, खुदा हाफिज।